सामने देखो, सामने ठीक है, कटो मोहम्मद शहबाज आए और तिलावत कलाम पाक फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم. اب میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سید زاہد حسین شاہ صاحب کو کہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت سی پیش کریں. سید زاہد حسین شاہ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم کے آشیاں ان کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیاں ان کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. حضرات محترم، اس طرح کے یہ سامنے تحریر جو ہے وہ واضح کاری ہے کہ آج کا یہ پروگرام قصبہ کے پلیٹ فارم سے راجہ محمد بوٹا صاحب مرحوم آف بصیر پور راجدان کے لوائقین نے ان کے اصالِ ثواب کے لیے نصب کرایا ہے. تو آج اس پروگرام کی دعائیہ تقریب ہے. تو میں اس میں آنے پر چیئرمین ضلع کونسلر راجہ نوید اختر گھوگا صاحب کا شکر گزار ہوں. ان کے ساتھ ساتھ میرپور سے تشریف لائے ہمارے مہمان راجہ فضل الرحمان صاحب ریٹائرڈ کمشنر، خوش آمدید جناب. الحار راجہ محمد جمیل صاحب، حاجی راجہ فضل صاحب اور ان کے تمام رفقا کو میں اہلیان محمود پور کی طرف سے اور راجہ احمد بشیر صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ دیگر آنے والے تمام مہمان ذرا مارکیٹ کے ساتھ، کیونکہ میرپور سے لوگ آئے ہیں، یہ مہمان ہیں، آپ سب میزبان ہیں. تو آپ سب میزبان ہیں، تو میزبانوں کا نام لینا میرے حل ہے. تو بلکہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور راجہ عامر بشیر کے بارے میں اتنا کہوں گا، کمشنر صاحب، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. تو راجہ عامر بشیر زندگی کی کسی اور ڈگر پر چل رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو کسی اور کام کرنے میں توفیق دیا. اللہ اس سے اور کام لینا چاہتا تھا. تو آج الحمدللہ جہاں پر پنجیڑی کے بڑے بڑے سپوتوں نے پنجیڑی کا نام روشن کیا ہے، راجہ عامر بشیر جو ہے وہ ویلفیئر کے کاموں میں پنجیڑی کا نام روشن کر رہا ہے. اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اب میں قصبہ ویلفیئر اینڈ ایمبولینس کے چیئرمین بانی چیئرمین راجہ عامر بشیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی اور قصبہ کے بارے میں مختصر طور پر عالمین کو آگاہ فرمائیں. راجہ عامر
راجہ فضل رحمان صاحب ریٹائر کمشنر بالکل، آج راجہ جمیل رحمان صاحب، صوبیدار مسعود صاحب، فضل صاحب، آصف صاحب، چیئرمین صاحب، جتنے بھی دوست بھائی میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں محمود پور علاقہ کے یا پل منڈا کے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے قصبہ کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہمارا پروگرام ہے اس وقت کے لیے آپ نے اپنا وقت دیا میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا یہ جو پلانٹ ہے چینل کا واٹر فلٹر پلانٹ، یہ تو جب میں پہلی مرتبہ ایک اسکول میں آیا تو ہم نے چھوٹا سا انتظام کیا، اس پہ میڈم نے ہمیں کہا کہ ہمیں پینے کے لیے پانی جو ہے نا بچوں کے لیے بڑی اور تعداد بھی ماشاء اللہ اسکول میں اچھی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے پودے بھی لگوائے اندر۔ تو یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جی اللہ بیٹا صاحب، جن کا نام امتیاز ہے، اللہ بیٹا ہی کہتے ہیں ان کو، ان کے مسافر سے محمد بیٹا صاحب جو فیملی کے دوست ہیں، ان کے نام پہ یہ واٹر فلٹر پلانٹ یہاں پہ لگایا گیا۔ اس کے علاوہ قصبہ ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے کافی سارے پروجیکٹ ہو رہے ہیں، ایمبولینس سروس ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ایمبولینس سروس بھی ہے، سلائی اسکول بھی ہے، واٹر فلٹر پلانٹ بھی چوتھا ہمارا پروجیکٹ ہے، 5واں بھی اسی گاؤں میں لگے گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں ہمارے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے علاقے میں، وہ غیر ادارہ جو ہمارا وہ کھڑی کے اندر ہے، ضلع میرپور کے اندر رجسٹر ہے، تو میرے سارے کام بھی زیادہ پروجیکٹ بھی سارے وہ کھڑی کے اندر ہیں۔ تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا بلکہ پوری قصبہ کی ٹیم کی طرف سے، محمود پور کی طرف سے، یہاں پہ جو سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارے لیے یہاں پہ آئے پلانٹ کے حوالہ سے، ہم نے جو بھی مطلب جو بھی تھا ہم نے اس پہ آپ کو بتایا، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی کا تعاون بھی کریں گے نیکسٹ انشاء اللہ قصبہ کے ساتھ۔ میری طرف سے قصبہ کی پوری ٹیم کی طرف سے سب کا شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے۔ حضرات محترم، یہ جو ادارہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول محمود پور، یہاں سے آج دن تک ہزاروں لاکھوں بچیاں جو وہ تعلیم حاصل کر کے گئی ہیں، تو میں آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے اس کی مختصر سی تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ادارے کی بنیاد 1978 میں محمود پور کی ایک انتہائی ملنسار، جس طرح ہمیں تاریخ میں بتایا ہے، رام پور صاحب نے بتایا ہے، مائی صاحبہ تھی، مائی حیات نور صاحبہ، اور ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ جس طرح عمر کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے چنے نہ تو وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بندہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، جس طرح ہمیں بتایا کہ صوبیدار مسعود صاحب نے بتایا، رائے خالد فاروق صاحب نے بتایا تھا۔ تو مائی صاحبہ نے سوچا کہ میں یہاں پر بچوں کی تعلیم کا اہتمام بس نہیں تھی۔ ان کے بھائیوں نے ان کو یہاں پر ایک کمرہ دیا، جگہ دی اور اسکول بنا کر دیا۔ اس کے لیے مزید رائے سلطان صاحب بہتر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ ظاہر ہے فیملی کا معاملہ۔ تو 1978 میں مائی صاحبہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اپنے طور پر، پھر تیسری سطح پر اس کی منظوری ہو گئی پرائمری اسکول کی، مڈل، اور آج الحمدللہ یہ ہائی اسکول کی حیثیت سے ادارہ کام کر رہا ہے۔ اور 78 سے لے کر میرے خیال یہاں تک سے لاکھوں بچے ہیں، ہزاروں نہیں کہ نیچے بڑیال پکھڑال تک کوئی ادارہ نہیں تھا، سب بچیاں جہاں آتی تھیں۔ تو یہ انسان کے کام ہیں جو یہ زندہ رہتے ہیں، انسان چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج جو راجہ محمد بوٹا صاحب کے لواحقین ہیں، انہوں نے ان کے اصالِ ثواب کے لیے واٹر فلٹریشن کا اہتمام کیا، تو الحمدللہ یہ بھی ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ رہے گا۔ تو اس طرح کے جو انسان کے کام ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کام ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ تو اب میں اظہار خیال کے لیے کھڑی کی انتہائی علمی شخصیت، بلکہ بہت پہلے جب لوگوں کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کھڑی چیز میں بزم اہل قلم کی بنیاد رکھی، اور مختلف جو لکھنے والے لوگ تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور آج الحمدللہ وہ ادارہ بھی بڑے اچھے طریقے سے جو صحافتی خدمات بھی انجام دے رہا ہے اور ادبی بھی۔ تو MD طاہر جلال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام
तकरीब के मेहमान खुशी राजा मीर अब्दुल साहब से मैं रिटायर्ड कमिश्नर काबिल काम रहमान साहब, राजा सत्यन मेंबर जिला कौंसल चौधरी बनारस शहर यार आजम मेंबर जिला कौंसल चौधरी विकास मेंबर जिला कौंसल और जुमला सरकार और बिलखसूस कस्बा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन राजा अमर बशीर साहब, मैं आपकी कोशिशों को, आपकी काविशों को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको इसका अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें बल्कि भलाई और अच्छाई के काम में एक दूसरे का हाथ जुटाने की तौफीक अता फरमाए। कोई देर हो जाती है तो माजरत, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें जो स्टेज सेक्रेटरी है सारा नजला उस पर गिरता है, क्योंकि मकसद आया करता है। लेकिन स्टेज सेक्रेटरी की मजबूरी होती है कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको इज्जत भी देनी होती है, अकोमोडेट करना होता है, तो कोई भी जो चीज़ है उसका थोड़ा सा पस मंजर भी बयान करना पड़ता है। तो अगर मुझ नाजीब की तरफ से थोड़ी देर हो जाती है तो उसका उसकी माजरत तो आने वाले तमाम मेहमानों को मैं असम्बली में तलब से खुश आमदीद करता हूँ। और चूँकि आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसके नतीजे में अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत शख्सियत चेयरमैन की सूरत में दी और उसके बढ़कर एक से एक चेहरा जो है वो खूबसूरत हमारे मेम्बरान जिला कौंसल मुंतखब हुए, नौजवान क्यादत सामने आई, चेयरमैन मेम्बरान हजरात मुंतखब हुए। तो यहाँ पर जितने भी काउंसलर हजरात, चेयरमैन और मेम्बरान जिला कौंसल हैं, सबको भी दिल की अथाह गहराइयों से मैं कस्बा की तरफ से भी और तमाम मेहमानों की तरफ से भी, मेज़बानी की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खुश आमदीद करता हूँ। तो लोकल बॉडी के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी और महमूदपुर की नुमाइंदगी के लिए राजा सत्यन साहब को दावत देता हूँ। मेरे लिए ताई काबिल एहतराम और आज इस तकरीब के चीफ गेस्ट जनाब चेयरमैन जिला कौंसल राजा नजीर अफसर होगा साहब, मेरे लिए ताई काबिल एहतराम राजा फजल रहमान साहब, रिटायर्ड कमिश्नर राजा जमीर साहब और मेंबर जिला कौंसल चौधरी बिलावल साहब, मेंबर जिला कौंसल चौधरी वकास साहब और दीगर आज की जो इस महफिल की तकरीब की सदारत कर रहे हैं हमारे रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद सऊद साहब और बाकी जो, क्योंकि आज ये महमूदपुर में जिस तरह ये हम मेज़बानी का किरदार अदा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी जिनका मैं नाम नहीं ले सका, जितने भी मौजूद हज़रात मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और बिलखसूस सच्ची बात है कि थोड़े से अरसे में जिस तरह मेरे भाई राजा आमर बशीर साहब ने ये कस्बा जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इसको उन्होंने बहुत कम अरसे में इतनी दिलजमी के साथ काम किया है कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये सच्ची बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत होता है कि उनको ये प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है और उन्होंने किस तरह दिलजमी के साथ काम किया। क्रेडिट सारा अल्लाह ताला की तरफ से ही उनको उनके दिल में अल्लाह ताला ने डाला और इस मकसद में उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया और हर चीज़ को बलाए ताक रखते हुए उन्होंने दिन रात दिलजमी के साथ काम किया और उनको थोड़े से अरसे में अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त भी दी है। इस बार मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ। और बाकी उन्होंने यहाँ जो मैं अपनी तरफ ना सिर्फ महमूदपुर की तरफ से बल्कि अलियान सीखपुर और महमूदपुर की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ इनका और बाकी दीगर तमाम जो मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं उनका और जो डोनर हजरात हैं और अल्लाह करवट जनरल सीनियर हाजी मोहम्मद बूटा साहब जिनकी उनकी इसाले स्वाद के लिए राजा अल्लाह दिता साहब, राजा इम्तियाज़ जिनका नाम है तो राजा अल्लाह दिता साहब उनको कहते हैं, अल्लाह दिता के नाम से ही ज़्यादा जाने जाते हैं। और इसके अलावा राजा बरकत साहब और दीगर भी जो डोनर हजरात हैं जिन्होंने साथ मिलकर ये इस तरह इसमें हिस्सा लिया और दिलचस्पी लिया, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल है और इसमें ज़रूरत भी थी इस चीज़ की। और जिस तरह बाकी आगे पीछे इन्होंने काम करवाए और इधर भी इनकी तवज्जो हुई है और इस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की था गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इनको वैसे भी इनकी नज़र है, इनकी नज़र होती है, बेहतर होगा। मरण आले और रहंदे ने सदा जिंदा जिंदा जिन्हां दी इजाजत याद है। मरण आले और रहंदे ने सदा जिंदा जिंदा जिन्हां दी इजाजत याद आवे। तो मैं समझता हूँ कि भाई हयात साहिबा फौत नहीं हुई हैं, बस निज़ाम इलाही के तहत उन्होंने यहाँ से पर्दा किया, वरना आज भी उनका नाम भी जिंदा है, काम भी जिंदा है। तो अल्लाह ताला
बल्कि मेरा भाईजान कहता है वो यकीनन बख्शी होते हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद करता है। उनकी बख्शिश की दुआ तो करते हैं ना हमारे बंदे की, लेकिन वो मेरा भाईजान कह रहा है कि जो उन्होंने काम किया है, जो काम की छोड़ कर गई है, वो जन्नती हैं और अल्लाह ताला जन्नत में उनके दर्जे मज़ीद बुलंद करता है। तो और भी लोगों ने आज दिन तक जिसने भी जिस अंदाज में भी इदारों के साथ तावन किया, हम दुआ करते हैं अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। तो अब मैं बिला ताख़ीर जनाब चौधरी बनारस आलम साहब से मुल्तमस हूँ कि वो अपने ख़िलाफ़ का इज़हार करें। मिंबर ज़िला कौंसल चौधरी बनारस आलम साहब। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन ज़िला कौंसल राजा नवीद अख्तर गोगा साहब, सदर महफिल राजा मसूद साहब, जनाब MD ताहिर जलाल साहब, जनाब कमिश्नर फजल रहमान साहब, जनाब इंस्पेक्टर राजा आसिफ साहब, जनाब मेंबर ज़िला कौंसल के वकास साहब, मेंबर ज़िला कौंसल राजा सफदैन साहब, मलक कमर साहब, मास्टर जुल्फ़कार साहब, मलक अल-अक़ीक़ा साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब फ़याज़ मास्टर फ़याज़ साहब, मियाँ साहब, बाकी जितने भी यहाँ पे अहबाब मौजूद हैं, सच्ची बात है आज आप लोगों के दरमियान आके बहुत खुशी हो रही है। खुसूस बिलखुसूस आज मुझे जिस शख्सियत ने यहाँ पे आने की दावत दी है, मेरी मुराद आमिर बशीर साहब से है जो कस्बा के MD हैं। तो इनसे मेरा जो है ना वो अपना टीन एज की टाइम से मेरा इनसे प्यार मोहब्बत का खलूस का रिश्ता है। तो आज बहुत खुशी हो रही है और खुसूस बिलखुसूस जिस गांव के अंदर आज हम मौजूद हैं, इस गांव में बाबा जी जो मेरे वालिद मरहूम के बड़े नहायत ही अच्छे दोस्त और भाई थे, जनाब सुल्तान अकबर साहब। तो ये 2-3 खुशियाँ जो हैं वो मिलजुल के बहुत बड़ी है खुशी हो गई है। कस्बा की मैं समझता हूँ कि सिर्फ कल का दिन है, कल का दिन जो माजी में अगर हम जाएं तो कस्बा एक छोटा सा पौधा था, तो आज माशाल्लाह कस्बा जो है ना वो एक फलदार दरख्त बन चुका है, एक सायादार दरख्त बन चुका है, जिसके साए से, जिसके फल से ना सिर्फ मैं समझता हूँ खड़ी शरीफ मुस्तफ़ीद हो रहा है, बल्कि खड़ी शरीफ के बाहर जो इलाके हैं, मीरपुर का इलाका है, या फिर हालिया दिनों तुर्की में मेरे भाई गए थे, वहाँ पे कुछ इमदाद लेके गए, तो ये तुर्की भी कस्बा के इस साया से जो है मुस्तफ़ीद हो रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला कस्बा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और मैं समझता हूँ कि ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट अपनी इसाल सवाब के लिए राय साहब के लिए यहाँ पे लगाया गया है, तो यही चीज़ें हैं जो आगे काम आनी है। तो यही अमाल है जो इंसान के जो है वो आगे काम आने हैं, क्योंकि इंसान का अमल या फिर सदका जारिया ही है, या फिर नेक औलाद है, या अच्छी फैमिली है जो इंसान के जो है वो काम आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी, क्योंकि सोशल जो डिपार्टमेंट है, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर मेरा भी एक वसी तजर्बा है, तो मैं यहाँ पे एक नाम नंबरदार साहब का लेना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मास्टर साहब जो है उनके वालिद थे नंबरदार साहब, नंबरदार अमीर साहब, मेरे वो उस्ताद भी थे, मेरे वो गाइड भी थे, मेरे वो जो है बुज़ुर्ग भी थे। उनसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, और हमने जो है वो मिलजुल के इकट्ठे, हमारी एक टीम थी खड़ी शरीफ के अंदर, हमने जो है वो अपना सोशल जो एक्टिविटीज़ में हमने बेशुमार इकट्ठे मिलजुल के काम किया है। तो मेरी आखिर में, क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी, मैं अपना टाइम जनाब चेयरमैन को देता हूँ। मेरी आखिर में कस्बा के लिए एक फिर दुआ है, अल्लाह ताला कस्बा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और कस्बा के लिए आज मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी मेंबरान ज़िला कौंसिल की और मेरे बिहाफ पे जनाब चेयरमैन ज़िला कौंसिल कस्बा को जहाँ भी ज़रूरत होगी, हम दिन रात 24 घंटे आपके लिए हाज़िर हैं। बनारस साहब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, और जिस तरह मैंने पहले तज़किरा किया कि इंसान के जो अच्छे काम हैं वो ज़िंदा रहते हैं,
और उसके सबब इंसान का नाम ज़िंदा रहता है। तो इसी हवाले से मेरे वालिद मोहतरम नंबरदार अब्दुल हमीद साहब ने भी अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए गुजारी। और मेरे ख्याल में कोई ये जो इर्द गिर्द के देहात हैं, कोई गाँव ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी हवाले से उन्होंने काम ना किया। तो बनारस साहब ने भी खड़ी सी वेलफेयर सोसाइटी में उनके साथ बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत शुक्रिया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे दरमियान एक तारीख़ी शख्सियत, ज़िंदगी की कई बहारें देखने वाले, और मैं इनको ताया जी के नाम से पुकारता हूँ हमेशा, क्योंकि इनका मेरे दादा मरहूम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था। फिर वालिद मोहतरम के साथ भी इनका इंतहाई मोहब्बत भरा ताल्लुक़ रहा। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान इस वक्त राजा मसूद साहब, रिटायर्ड सूबेदार राजा मसूद साहब तशरीफ़ फरमाए। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। और उसके बाद राय साहब जो हैं वो कस्बा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 50,000 रुपये का अतिया भी पेश किया है। तो अल्लाह ताला इनकी तरफ से दिया वो डोनेशन भी कबूल फरमाए और अपने ख्यालात का इज़हार भी फरमाए। जनाब नवीद अख्तर गोगा साहब, चेयरमैन ज़िला कौंसिल जेतपुर, मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। सुनकर मुझे कुरान करीम की आयत याद आई है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये अल्लाह का फजल है। आज इनकी उम्र जो है वो 90 साल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है कि 90 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेकायमी होश आवास हैं और ना सिर्फ गांव के और इलाकाई मामलात से आगाह हैं बल्कि बैन अल-अक़वामी मामलात से भी आगाह हैं। लोगों के घरों की कश्तियाँ डूब गई हैं, किसी को पता नहीं है, तो इनको यूनान की कश्ती का भी पता है माशाल्लाह कि वो डूब गई है। यहाँ पर लोगों के घरों की कश्तियाँ डूब गई हैं, किसी को पता ही नहीं चला। तो ये है अल्लाह का फजल। तो मादर के साथ अब राय साहब वैसे प्रोग्राम क्लोज कर रहा था, लेकिन चूँकि चौधरी वकास अली साहब भी चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए और फिर हमारे दरमियान मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जनाब रिटायर्ड कमिश्नर साहब भी तशरीफ़ फरमाए। तो वकास साहब वक्त का ख्याल रखते हुए मेंबर ज़िला कौंसिल हैं चौधरी वकास अली तरपा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन ज़िला कौंसिल राजा नवीद अख्तर गोगा साहब, मेंबर ज़िला कौंसिल बनारस आज़म साहब, मेंबर ज़िला कौंसिल राजा सल्तेन साहब, MP ताहिर साहब, दोस्तों जी बिल्कुल आप सुन लेते हैं, अपना कार है बिल्कुल मेरे तमाम इमरान और चेयरमैन साहब आपके लिए अल्लाह के फज़ल करम से 24 घंटे हाज़िर हैं। आप ये अच्छा काम करें, हम हर वक्त आपके साथ हैं और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इंशाअल्लाह ताला हमारा तावन हर वक्त आपके साथ है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। दामन में वुसअत नहीं रखता है और जितना वक्त दामन वुसअत नहीं रखता, गर्मी उतनी वुसअत रखती है। तो इसलिए आप प्रोग्राम को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहते, तो मैं जनाब राजा फजल रहमान साहब रिटायर्ड कमिश्नर हैं, पंजेड़ी की आन है, पंजेड़ी की शान है, सरपरस्त आला हैं कस्बा वेलफेयर के। जनाब चेयरमैन ज़िला कौंसिल बीक गोगा साहब, अमर बशीर साहब, MP ताहिर साहब, मेंबरान ज़िला कौंसिल बल्दियाती नुमाइंदगान वज़ीर मोज़ीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एहलियान मेमनपुर को खसूसी तौर पर और इलाके को लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है ये आपके स्कूल में कायम हुआ है। मुबारकबाद इसलिए भी खास तौर पर कि क्योंकि ये बच्चों का स्कूल है और मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा सहूलत अगर बच्चों को दी जाए तो उसमें कोई किसी किस्म का बच्चों को तो मिलती रहती है, चलो आगे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चों का मामला ऐसा होता है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिलनी चाहिए। आज मेमनपुर में आकर एक और मेरे इल्म में इजाफा हुआ। वो बाबा सुल्तान अकबर साहब से कोई जानते थे और उन्हीं की खिदमत से बहुत से वाक़फ़ थे, लेकिन आज पता चला है कि उनकी फैमिली में मस्तूरात भी ऐसी पैदा हुई हैं, अल्लाह ताला ने उनको जन्म दिया है कि वो भी इस काम में किसी से पीछे नहीं थी। बाबा सुल्तान अकबर
अब तो खैर सारे बुजुर्ग हैं, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हमने उनके साथ डील किया है। मैं समझता हूँ कि उन जैसा जीरक आदमी शायद ही कोई इस इलाके में हुआ हो। उनको गुफ्तगू का एक मलका हासिल था, जो बात किसी से मनवानी हो वो मैं समझता हूँ कि इस अंदाज से खूबसूरती से गुफ्तगू करते थे कि कोई ना मानने वाला भी जो है वो उनको प्लेट में रख कर दे सकता था। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और बाकी इलाका को उनको करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक कस्बा का तल्लुक़ है, अमर बशीर साहब मेरे अजीज़ हैं, एक ही जगह से हमने बिल्कुल खरीदी है। ये आज जो आप शक्ल देख रहे हैं ये शायद आपने बचपन में नहीं देखी। इंतहाई सैदपोश फैमिली से इन्होंने परवरिश पाई और अपनी मेहनत से बिल्कुल 100% बाद लोग तो सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और उनको दुनिया जहाँ का कोई पता नहीं होता, वो समझते हैं कि जो हम पैदा हुए हैं वही कुछ है। लेकिन इन्होंने हर चीज़ देखी है, गुर्बत भी देखी है, हर चीज़ इलाके को देखा है। तो ये मैं एक चीज़ आपको गारंटी से कहता हूँ, तो तसल्ली इलाके को कराता हूँ कि आप इनके ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका एक टेढ़ी पैसा भी इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। कि अच्छी घर से अच्छे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं इंशाल्लाह। मुझे भी तो चंद दिन पहले कोई एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा जी कि छोटे छोटे मामलात होते हैं, शायद कोई कोताही भी कहीं नज़र हो जाए मुझसे, तो आप इसका सरपरस्त आला बने ताकि चेक एंड बैलेंस जो है वो भी कायम रहे। आप भी देखते रहें कि कोई कहीं किसी किस्म की कोताही तो नहीं हुई। बहरहाल मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन पर एतमाद किया। इन्हें अपने इलाके में ख़ास कर ये मैं समझता हूँ कि पीएडी का हमारा वो इलाका भी है, उसमें ये छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इनकी इधर है, क्योंकि इन लोगों ने ही इस पर एतमाद किया है। और मैं समझता हूँ कि ये एतमाद आइंदा भी चलता रहेगा और मेरी दुआ है कि कस्बा इस इलाके को मज़ीद खूबसूरत बनाए। शुक्रिया। हज़रात मोहतरम, मैं यहाँ पर जो अपने मामनीन हैं जो कस्बा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर मौका पर तामन करते रहते हैं, तो कोई 4-6 महीने पहले भी हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया था इस स्कूल में और बच्चियों को जो है वो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिए थे, कुछ स्कूल बैग दिए थे कस्बा के प्लेटफार्म से। तो उस मौका पर जनाब सदर मौलमा ने हमें कहा जी कि स्कूल में प्लांटेशन की ज़रूरत है। तो हमारे साथ चौधरी महमूद असलम साहब थे, नग्याल से आपका तल्लक है, रिटायर्ड DFO चौधरी असलम साहब मरहूम के बेटे चौधरी महमूद असलम साहब। तो उन्होंने यहीं पर अनाउंस किया कि जितनी भी प्लांटेशन जिस तरह की भी आप चाहेंगे वो मैं कराऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे को हमने पूरा किया। और मेरे ख्याल तकरीबन 1.5 लाख के यहाँ पर हमने पौधे हर तरह के लगा कर दिए। तो मैं चौधरी महमूद असलम साहब को और सुबेदार साहब के फरजांद अर्जमंद राजा बाबर मसूद साहब हैं, वो भी हमेशा तामन करते रहते हैं। और इसके साथ ही मलिका गांव गुड़ा आवान से जो ट्रैक बना ट्रैक का बताएं। हाँ, ये जो अंदर स्कूल में गर्मी में आप विजिट नहीं कर सकेंगे, तो राजा बाबर मसूद साहब ने अंदर बड़ा अच्छा खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक बना कर दिया और उस पर भी लाखों के हिसाब से खर्च हुआ। तो ये गुड़ा आवान है हमारे साथ, इसमें हमारे बहुत ही प्यारे मेरे बचपन के दोस्त हैं मलिक अमानत साहब, UK ब्रिस्टल में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमारे साथ तावन करते रहते हैं। और अभी कल ही मीरपुर डायलिसिस सेंटर के लिए उन्होंने तकरीबन 3.25 लाख रुपए दिए, जो मैं और जुल्फ़कार साहब और चौधरी अदर साहब हमने जाकर वहाँ डॉक्टर ताहिर साहब को दिए। और खड़ी शी वेलफेयर सोसाइटी के साथ भी बहुत तावन करते रहते हैं। मैं मलिक अमानत साहब के लिए दुआ गो हूँ। इसके साथ ही राजा अहमद साहब हैं, पखड़ाल से उनका तल्लक है। हाँ जी, तो वो भी इस वक्त इंग्लैंड में हैं। तो माशाल्लाह वो जो है वो कस्बा के साथ बहुत बढ़ चढ़ कर तावन करते हैं। बल्कि जो जनूबी पंजाब का सैलाब था उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तावन किया। और उन्हीं के बिहाफ पर अहमद साहब अपनी टीम को लेकर राजनपुर में गए और वहाँ जाकर उन्होंने काम किया। तो हमेशा राजा अहमद साहब भी लाखों के हिसाब से जो है वो इदारों को डोनेशन देते थे। उनके लिए दुआ हूँ। इस प्लांट की तनसीब के लिए जो आप पहले जिक्र किया गया राजा इम्तियाज़ साहब अलमारूफ राजा अल्लाह देता, तो हमारे बुजुर्ग थे रिटायर्ड गर्दावर राजा दानदार साहब घसीटपुर के, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के अमल बुजुर्ग थे। वो उनके बेटे हैं राजा ललिता साहब, उन्होंने बहुत तावन किया। और इस प्लांट का जितना भी काम हुआ है उसमें हमारे जो ये रज़ाकार हैं गोयर साहब,
इन्होंने बहुत दौड़ धूप की है। दिन में जातला से जहाँ पर कई चक्कर लगाते आते जाते, गर्मी में सर्दी में मोटरसाइकिल पर हर हवाले से इन्होंने बहुत काम किया है। तो गोयल साहब मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो और भी लोग जिस अंदाज में भी इदारे के साथ, बल्कि जेल इदारों के साथ भी जो भी तावन करता है, सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इदारों के साथ तावन करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रात इस तरह के काम ही बाकी रहेंगे। बाकी जो इन्वेस्टमेंट हम कुछ फजूल लोगों पर करते रहते हैं उससे बचना भी चाहिए। तो अब मादरत के साथ प्रोग्राम थोड़ा तवील भी हो गया, गर्मी भी हो गई, तो मैं ज़िला मीरपुर की आन, मीरपुर की शान, सेल्फ मेड इंसान राजा नवीद अख्तर गोगा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। चेयरमैन ज़िला कौंसिल जनाब राजा नवीद अख्तर गोगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदर महफल मेरे बुज़ुर्ग सुल्तान मसूद साहब, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के बानी और आज के इस महफल के मेज़बान आमिर रशीद साहब, बशीर साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ, क्योंकि अगर इजाज़त दे तो मैं सबका नाम तो खालिद साहब हो चुका है, तो अभी सबका नाम जो है वो दोबारा रिपीट करने का गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरा एक और प्रोग्राम है शहर में, तो साफ़ियत रात जो दिन रात जो है वो खड़ी की मसाइल की निशानदेही करते हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अहमद बशीर साहब को कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में, मैं जब यहाँ ज़लज़ला आया तो मैं कई मकामात पे मैं मोटरसाइकिल पे मैं फिर रहा था, तो मुझे 3-4 जगहों पे ये मुझे पैदल सामान के साथ मिले। जो पुलमंडा भी ये दूसरी जो आबादी है उसमें मेरा आमना सामना हुआ, बन्नी में मेरा आमना सामना हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो दर्द दिल रखने वाले, ये इनका इस धरती में होना और फिर ऐसे मसाइल का जो आज जिस तरह आज हुआ है, एम्बुलेंसें हमारे माशरे में जो बीमार जो लोग हैं उनकी फ्री जो है वो सर्विस देना, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने किसी किसी के नसीब में जो है वो लिखा होता है, और आज मैं समझता हूँ कि इनके ये क्रेडिट में जाता है। तो जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग ये एकेडमी है, ये हमारे इस माशरे में हम कोई भी इस लेवल की गुफ्तगू नहीं कर सकते। हमारा हालांकि शोबा ये सियासत, हम हर आए दिन जो है वो स्टेज पर होते हैं, लेकिन जितनी गुफ्तगू पायदार और जिन मसाइल पे इन्होंने बात की है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे इस जहाँ मैं खड़ा हूँ, हमारे बुज़ुर्ग थे बाबा अली सुल्तान अली अकबर साहब, वो भी एक एकेडमी थे, उनका भी जो है वो आज़ाद कश्मीर के बड़े सियासतदानों में उनका शुमार था, और माशाल्लाह उन्होंने काम भी किया। उनके लगाए हुए पौधे कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ रिटायर के नज़दीक हैं। चौधरी खादम मरूम थे, ज़ालदार सफदर मरूम थे, मलिक आज़म मरूम थे, चेयरमैन अदिता साहब हैं, चौधरी अमीर साहब हैं, जिस तरह मिर्ज़ा अब्दुल वाहिद मरूम हैं, चौधरी आज़म साहब, ये वो चौधरी मनीर साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस खड़ी के अंदर एक सियासत का रफ़ाई फलाई और भाईचारे का जो है वो यहाँ आगाज़ किया। और फिर मैं समझता हूँ कि आज उनकी सूरत में ये देख रहे हैं, ये उन्हीं के लगाए हुए पौधे, हर तरफ आप देखें कि लोग जिस तरह हमारा आज कोई यहाँ हुकूमत और अपोजिशन नहीं है। मैंने अपने पहले इजलास में ज़िला के चेयरमैन बाबा जी मैंने कहा था कि मैं सबका चेयरमैन हूँ, कोई मेरी पार्टी नहीं है। जब मैं वन में मुंतखब हुआ हूँ तो फिर बिला तखसीस में काम करूँगा ज़िला मीरपुर के अंदर, और इंशाल्लाह पहला जो एक पार्क का आपने जिक्र किया तो मैं पहला यहाँ ऐलान करता हूँ कि मैं अफजलपुर के मुकाम पर इंशाल्लाह बहुत बड़ा पार्क आपको मिलेगा। तो बाकी क्योंकि यहाँ एक मैं लिखता रहता हूँ, मैं अपना काम, ये मीडिया के लोग किसी दिन आए दफ्तर में, मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा, सबूत के तौर पर दूंगा कि मैं, अगर आपके ये पुलमंडा सैफन की बात हो तो मैंने एक्शन, डिप्टी कमिश्नर, हाईवे सबको लिखा और सख्त लिखा है कि ये वो मकाम है जिस पर बहुत सारे हादसात होते हैं या होने के खदशात हैं, फिर फोर इसको जो है वो मुकम्मल किया जाए, इसलिए कि ये खड़ी जो है वो एक जरखेज़ खिता है। और फिर यहाँ पे हमारे बहुत सारे वली अल्लाह इस धरती में जो है वो मौजूद हैं। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने पार्क के हवाले से, एक और उस दिन मैंने बुलाया हुआ था, ये लारैब है, हमारी ज़मीनें खड़ी में, आपको पता है कि आप ऊपर चले जाएं तो आपको रेवेन्यू फाउंडेशन खड़ी के अंदर बनी हुई है, आप उससे आगे चले जाए बंगा में तो पूरा इंडस्ट्री एरिया जो है वो इस खड़ी में बना हुआ है, उससे आगे चले जाए
तो फिर वो बहुत सारे सेक्टर बने हुए हैं जो खड़ी की ज़मीनों को ख़त्म करते हुए हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम किधर उनको आबाद करेंगे। इधर दरिया है, इधर नहर है, उधर लारेब है, उधर ऊपर इंडस्ट्री है, इधर हमें इस पर सोचना होगा, हमें इस पर आवाज़ उठानी होगी। अभी मैंने लारेब को कहा कि आप कितने अरबों का यहाँ से कमा रहे हैं, तो आप खड़ी में क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने मीरपुर में ये 85 लाख लगाया या कितना। मैंने आप खड़ी में लगाओगे, मैं देखता हूँ आप किस तरह फिर इस तरह निज़ाम चलेगा। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीनें हमारी बर्बाद हुई हैं, हमारे लोगों को जो है वो आप वहाँ लैडी से लेके यहाँ तक देखें ना, कितना हमारे लोगों की ज़मीनें जो है वो फ़ायदा तो उनको हो रहा है, करोड़ों रुपए वो मंथली का उनको फ़ायदा हो रहा है। तो खड़ी में एक उसको CSR उसको कहते हैं कि वो यहाँ कम्युनिटी पे वो क्यों कमिश्नर साहब वो लगाने के पाबंद हैं। शेड्यूल जो बैंक है यहाँ पे वो भी उस इलाके में इन्वेस्टमेंट जो वो अरबों रुपये जो हमारे बैंक है यहाँ से मुनाफा ले रहे हैं, वो भी यहाँ लगाने के पाबंद हैं। लेकिन क्यों हमने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, हमने इनको पाबंद नहीं किया। मैं मेम्बरान ज़रा और तमाम हमारी जो सोसाइटी है, मैं इनसे इल्तमास करूँगा कि आप मेरे हाथ मजबूत करें। जिस तरह सरदार साहब ने मुझे कहा, बहुत सारी निशानदेहियाँ की हैं, आप मेरे साथ हूँ तो मैं हर छत्ते पे हाथ डालूँगा। मैंने वादा किया हुआ है आपके इस मीडिया के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ, ना मैं करप्शन करूँगा, ना मैं किसी को करने दूँगा। एक और दूसरा मैं काम लूँगा। मुझे नहीं पता कि मेरी अपनी सांस मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ तक भी जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, ये मेरे रब के पास है। तो कुर्सी के लिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मेरी खड़ी का और ज़रा मीरपुर का जिससे जो है वो कोई तकदस या कोई इस तरह की चीज़ जो मजरू हो। इसलिए मैंने उस दिन बैरिस्टर साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा जी आपको फ्री हैंड है, आप काम करें, हम आपके पीछे खड़े। ये पूरे 10 जो ज़िला के चेयरमैन थे वो मेरे साथ थे। तो मैं समझता हूँ कि जब उनका मुझे तावन मिला तो मैंने कहा जी कि मैं इंशाल्लाह डट के करूँगा और आपको डडियाल से लेके खड़ी तक काम भी नज़र आएंगे। जिस तरह ये उमर ज़िला कौंसल साहब, ये जो चीज़ें हैं ये आप लिख के दें और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये चीज़ें हमने करनी है, हम अपने वसाइल इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, वो पब्लिक पर होंगे। मैं खुद हर प्रोजेक्ट का मैं मायना कर रहा हूँ, मैं खाड़क में, डडियाल में, रठोआ में, आप मेरा सोशल मीडिया देख लें, इस पर कोई मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। मटेरियल पे और क्वालिटी और क्वांटिटी पे, इस पर इंशाल्लाह मैं भरपूर मैंने फोकस किया हुआ है। इंशाल्लाह बाबा सरदार साहब एक दिन मैं आपके पास आऊँगा। आपने जो बातें की हैं ना मैं बहुत सारी बातें आपको और बताऊंगा। आपको ये एक तारीख बनाकर आप जब 5 साल पूरे हों तो आपका तारीख में नुमाइंदा इंशाल्लाह नाम हो इंशाल्लाह। तो मैं वक्त बहुत ले लिया अमर साहब, एक मीटिंग हमारी फिर होगी इंशाल्लाह आपके साथ। आपके कुछ चीज़ें जो है वो मेरी डोमेन में आती हैं, हम बैठेंगे इंशाल्लाह, हम मिल के काम करेंगे। मेरा अपना जो है वह ज़ाती सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना जो ज़ाती आगे मिशन है कि सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन मैं अपने आप को, मेरा दिल है कि मैं इन कामों में अपने आप को जो है वो वक्त करूँ। सियासत बहुत सारे लोग हैं, करते रहेंगे, होती रहेगी, लेकिन ये जो काम है ये अल्लाह को खुश करना, उसके रसूल को खुश करना, उनकी बताए हुए रस्तों पे चलना, मैं समझता हूँ असल इबादत ये है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने आप को इन कामों के लिए वक्फ करूँ। तो एक बार फिर अलियान महमूदपुर तमाम का मैं आपका, बाबा नज़ीर साहब थे यहाँ पे, उनका भी बड़ा नाम था। तो मैं समझता हूँ कि आप तमाम अहबाब ऐसे कामों में दिल खोल के जो है वो निशानदेही भी करें और रहनुमाई भी करें और मदद करें। तो एक दिन मैं प्रेस को बुलाऊँगा जी, जो मैंने किए हैं, जो मैं करना चाहता हूँ वो आपके सामने रखूँगा। जो मेरी गलतियाँ वो मैं ओपन कहता हूँ, जो मेरी गलतियाँ ओपन करें, आप उसको लिखें। मैं कहता मैं ऐसी जो आपकी तनकीद में इंशाल्लाह दिल पे और माथे पे आपको प्यार दूंगा कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। हाँ बिल्कुल, सारे जमील साहब, यादव साहब, आप उम्मीदवार साहब इस पर निशानदेही करें तो मुझे खुशी होगी कि शायद मुझे ना पता हो और कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो जाए। तो मैं आपको इंशाल्लाह दफ्तर में भी दावत दूंगा, डेरे पे भी दावत दूंगा और फिर हम मिल के चलेंगे और खड़ी के मसाइल को और ज़िला मीरपुर के मसाइल को हल करेंगे। बहुत शुक्रिया।